Hi guys, welcome back to my channel and I hope you are doing well in your preparations and just go for it. Hope you get to go through this time. So today we are going to talk about my job profile. See, income tax inspector, what is the job profile, what are salaries and perks, what are the transfer aspects, whether you should opt for income tax inspector anymore, and likewise everything we are going to cover in this video. So those who are new to my channel and today only watching this video, so I'll talk about little bit SSC CGL. So SSC CGL is an exam of graduate level for graduate level students, which is conducted by SSC, that is Staff Selection Commission. You can visit the website of ssc.nic.in and you can find out the details about it. So to get the selection in income tax department as inspector, you have to pass the exam of SSC CGL with really good marks. So today we are going to talk about firstly the procedure of CGL. Again, this is for the new students only. So SSC CGL conducts its exam in two tier. Tier 1 will be qualifying nature and there will be 100 questions, and tier 2 will be the main deciding exam based on which your ranks will be decided. So overall you have to do well in your tier 2 exam, and to get selected in the inspector's post you have to be in the top, I guess, 300-400 students, that then only you will be able to get into the department at your desired place. So no delaying further this video. So that was the procedure of SSC CGL. Okay, once you are done with the tier 2 exam, then there will be a preference form on the website of SSC itself that you have to fill it up, like what will be your preferences for the post and what will be your preferences for place of posting. Okay, so once the result will be declared, they will give you your cadre which you're selected in and the place of posting. So once that is done, so let's say you got selected as income tax inspector and you got a place of posting. Let's say in my case it was Chennai. So after getting allocation of state, they will call you for further document verification. Okay, then we were called for document verification. Each and every document they are going to verify there in original and as well as a set of copy you have to produce. So once you produce the set of copies and you get the DV verification done, then you have to go for medical examination. Medical examination is nothing but just a simple medical certificate which you have to obtain from a government medical hospital. Okay, सो इन आवर केस व्हाट हैपेंड इज़, जब हम जो मेडिकल सर्टिफिकेट अपने वहाँ से ले गए, जैसे मैं राजस्थान से आई थी तो मैं राजस्थान से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एक लेकर आई थी, वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था. इन्होंने बोला फ्रॉम चेन्नई इटसेल्फ यू हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट. सो हमने यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल, हमने वहाँ विजिट किया और वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट ईजिली मिल गया था हमें विद इन हाफ एन आवर और सो. ओके, तो इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली. तो इनकम टैक्स में अगर मैं फिजिकल इसकी बात करूँ तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू फाइट द एग्जाम एंड गेट इनटू द डिपार्टमेंट बेसिकली. नो नीड टू वरी अबाउट द फिजिकल दिस थिंग. Okay, so once everything is done, you will receive a joining letter and you have to join the department. After joining, like in first posting, they will post you in the office of Principal Chief Commissioner of Income Tax only. Okay, that is your first posting. After 3 to 4 days they will decide where to post you further. उसके बाद हमें फर्दर पोस्टिंग मिलती है. इनकम टैक्स में सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे वास्ट एरियाज़ हैं. लाइक आपको फील्ड पोस्टिंग मिल सकती है, आपको डेस्क जॉब भी मिल सकती है, और भी फर्दर वेराइटीज़ हैं, असेसमेंट, नॉन असेसमेंट वगैरह वगैरह. तो मैं बताती हूँ इसमें डिटेल में क्या होता है कि लेट्स से कि आपको मिलती है इन्वेस्टिगेशन पोस्टिंग. इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या है, इन्वेस्टिगेशन में ही सारे के सारे रेड जो होती हैं, सर्चेज जो होती हैं, वो केस डेवलप होते हैं. उसके बाद वो लोग ही रेड करते हैं. रेड में बाकी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मेन काम जो रेड कंडक्ट करने का होता है वो इन्वेस्टिगेशन का ही होता है. सो इन्वेस्टिगेशन में रेड्स होती हैं, मेजरली सर्चेज होती हैं. वहाँ का काम मेन इनकम टैक्स का काम है. वो बहुत एक्साइटिंग काम है. मैंने वहाँ पे 4 साल जॉब करी है एंड दैट इज़ अ रियली गुड एस्पेक्ट
of my service so far. I have been there in the department for almost 5.5 years. So for 4 years I was there in the investigation wing only. So that is a really great experience. Okay. सो इन्वेस्टिगेशन के अलावा क्या होते हैं, असेसमेंट और नॉन असेसमेंट सेक्शंस होते हैं. अब असेसमेंट सेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोग ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें हम अपनी इनकम दिखाते हैं, उसके अंदर हमारे कोई डिडक्शन है तो वो दिखाते हैं, कोई लोन ले रखा है तो वो दिखाते हैं. ऐसे कर आके जो फाइनल अमाउंट होती है उस पर अगर कोई टैक्स एप्लीकेबल होता है हमारे ऊपर तो वो हम पे कर देते हैं. तो क्या होता है, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं लेकिन कुछ लोग झूठे क्लेम भी करते हैं. ठीक है, मैं सिर्फ सैलरी क्लास एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कंपनीज़ की भी बात कर रही हूँ. कंपनीज़ में भी क्या होता है, लोग गलत एक्सपेंसेस दिखाते हैं, झूठे लॉसेस दिखाते हैं, ये सब चीज़ें दिखाते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि उस केस को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है. वंस इट्स सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी, उसके बाद क्या होता है कि उसका असेसमेंट होता है कि हम उसको शो कोज इशू करेंगे, कि हम पूछेंगे उससे कि बताइए आपने ऐसे ऐसे क्यों किया है. अगर उसके पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस केस को डिस्पोज कर देते हैं. लेकिन अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम एक असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं, जहाँ पे जो उसने क्लेम किया हम उनको वापसी ऐड करते हैं, उसको झूठ बोलने के लिए उसकी पेनल्टी लगाते हैं और असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं. ठीक है, तो असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाता है. उसके बाद उसकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसको पे करनी होती है. लेकिन फिर SSC के पास एक और चीज़ क्या होती है कि वो इसके अगेंस्ट फर्दर बहुत सारी चीज़ें हैं, अपील्स में जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं. दैट इज़ अ रियली वास्ट एरिया, तो हम वो बाद में बात करेंगे. सो ये बेसिकली मोटा काम होता है. नॉन असेसमेंट सेक्शन क्या होता है, जहाँ पे बेसिकली असेसमेंट रिलेटेड कोई काम नहीं होता है. जैसे कि ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट भी होती है डिपार्टमेंट के अंदर, ऑडिट का काम हो गया, नॉन असेसमेंट में आ जाता है. TDS का काम हो गया, नॉन TDS अगेन, लाइक राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन TDS ओनली. TDS अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है. वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग टैक्स डिडक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड दे हैव टू रेमिट इट इनटू द गवर्नमेंट्स अकाउंट, तो हम उनको वॉच आउट करते हैं कि वो लोग प्रॉपरली डिडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अगेन उन पे पेनल्टी अप्लाई होगी. अगर वो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं तो उन पे पेनल्टी लगेगी, उन पे प्रोसिक्यूशन होएगा. लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग इन द TDS सेक्शन. सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम इसमें करते हैं. ठीक है, ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल के बारे में. अब हम बात करते हैं पेज एंड पर्क्स की. सो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो ग्रेड पे होती है वो 4600 ग्रेड पे होती है. 4600 ग्रेड पे का मतलब है आपकी बेसिक सैलरी 44900 से स्टार्ट होती है, 44,900 रुपीज़ से. सो बेसिकली जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली कुछ 57,000 58,000 के अराउंड थी, विच इज़ इन X सिटी. ओके, Y और Z सिटी में सिर्फ HRA का डिफरेंस आता है. HRA आपका अकॉर्डिंगली कम हो जाता है. ठीक है, तो X सिटी में हम हैं चेन्नई में, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 58,000 की जो हमारे पास इन हैंड सैलरी आई थी. अब आपके रेफरेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, एक पे स्लिप यहाँ पे अटैच कर दूँगी. देयर यू कैन सी दैट बेसिक पे इज़ मैंशनड. उसके बाद हमारा DA मैंशन होता है, फिर हमारा HRA मैंशन होता है, फिर हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मैंशन होते हैं, और फिर हमारी ग्रोस बनती है. इस ग्रोस सैलरी में से NPS डिडक्शन होता है, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का डिडक्शन होता है. उसके अलावा CGHIS का होता है, हेल्थ एजुकेशन एंड सेस का होता है. बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं. अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो आप टैक्स का भी डिडक्शन करवा सकते हैं. सिमिलरली इन सारे डिडक्शन के बाद हमारी नेट पे बनती है और नेट पे हमें मिलती है. तो अगर मैं पेज की बात करूं तो प्रेटी मच सारे के सारे जितने भी जो पहले इंटरव्यू पोस्ट बोलते थे उनके लिए सेम ही है. 4600 ग्रेड पे सिर्फ AAO की जो पोस्ट होती है उसका 4800 ग्रेड पे का पोस्ट होता है. उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे किसी एक और वीडियो में. तो इसमें 4600 ग्रेड पे, लेकिन ये ग्रुप C की पोस्ट होती है. ठीक है, जैसे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D भी होता है. ठीक है, तो ग्रुप B में क्या होता है, जब हम इंस्पेक्टर से एक और प्रमोट हो जाते हैं, जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, ITO बनते हैं, तो हम ग्रुप B में जाते हैं. ठीक है, और जो IRS लोग होते हैं वो ग्रुप A में होते हैं. ओके, सो अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे प्रमोशन कैसे होते हैं, तो जैसे ही आप डिपार्टमेंट में एंटर करते हो आपको एक तो ITI कॉन्फर्मेशन का एग्ज़ाम देना होता है. ITI कॉन्फर्मेशन का एग्ज़ाम कुछ नहीं होता, उसमें 4 फिर से फर्दर एग्ज़ाम होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, स्पेसिफाइड सिलेबस होता है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है. आपको पास होने के लिए सिर्फ 45% मार्क्स ज़रूरी होते हैं. दैट मीन्स 45 आउट ऑफ 100. ओके,
तो बहुत बेसिक एग्ज़ाम होता है, कोई टफ नहीं होता। तो सबसे पहले आपको वो क्लियर करना होता है। जब 1 साल में आप वो क्लियर कर लेते हैं, 2 साल में जितना भी आपको टाइम लगता है उसमें वो क्लियर कर लेते हैं ईयर बाई ईयर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, हर साल सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करते हैं। तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। फिर जब वो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आप ITO के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो, फिर आप ITO का एग्ज़ाम दे सकते हो। सिमिलरली वो जो 4 सब्जेक्ट वहाँ थे वही ITO के एग्ज़ाम में होते हैं, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होते हैं, बट प्रीटी मच सेम सिलेबस होता है, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें एक पेपर 4 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये भी बहुत इजी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और इस एग्ज़ाम को जब आप पास कर लेते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट का भी बेनिफिट होता है, आपकी सैलरी में 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, मान लो आप एग्ज़ाम फाइट नहीं कर रहे हो तो हर साल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एनुअल इंक्रीमेंट भी लगते हैं। जैसे मान लो कि मैंने अगर दिसंबर में ज्वाइन किया है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सर्विस ओनली, दैट इज़ मेरा इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा हमेशा। मान लो कि मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है मई में, ठीक है, तो मेरे 6 मंथ्स नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, तो मेरा इंक्रीमेंट हमेशा लगेगा जनवरी में। ठीक है, हर साल एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, जिससे आपकी बेसिक इंक्रीज़ होगी, बेसिक इंक्रीज़ करोगी तो आपकी DA इंक्रीज़ होगा, DA इंक्रीज़ होगा, HRA इंक्रीज़ होगा, तो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ होता है आपकी सैलरी के अंदर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम एज सुन एज यू गेट इन टू डिपार्टमेंट आपको क्लियर कर लेना चाहिए, बट नहीं भी करते हो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ पासिंग ऑफ एग्ज़ाम मैटर नहीं करती है फ्रॉम इंस्पेक्टर टू ITO। जब आप प्रमोट होते हो, इंस्पेक्टर टू ITO प्रमोट होने के लिए जो मैटर करती है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, मार्क माई वर्ड्स, वो होती है आपकी CGL की रैंक। जी हाँ, जब आप मान लो कि चेन्नई में हम 90 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो 90 लोगों में जैसे रैंक डिसाइड होती है 1 to 90, तो सबसे पहले प्रमोशन जो सबसे टॉप रैंक पे था उसका होएगा, फिर सेकंड वाले का होएगा, फिर थर्ड वाले का होएगा। और दूसरी बात, जिन लोगों का OBC का कोटा और रिजर्वेशन रहता है ना, वो लोग भी ध्यान से सुन ले, वंस यू गेट इनटू द डिपार्टमेंट OBC कोटा नलीफाई हो जाता है। वहाँ पे फर्दर आपको कोई भी OBC कोटा नहीं मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप OBC कोटे से हो तो आपकी रैंक जनरल वालों से नीचे होती है, तो प्रमोशन में भी सबसे पहले जनरल वाले आते हैं और फिर OBC वाले आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपके CGL के 2 मार्क्स की वजह से भी आप प्रमोशन में भी काफ़ी पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो आपको अपना बेस्ट देना है CGL की प्रिपरेशन करते टाइम। ऐसा नहीं है कि ये CGL के मार्क्स आपको आगे जाके काम नहीं आएंगे, ये काम आएंगे आपके प्रमोशन में। ठीक है, और बाकी प्रमोशन के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको पता चल जाएगा। मोटा मोटा यही होता है कि ठीक है, आपको अपने मार्क्स पे मेहनत करनी है और आपकी रैंक मैटर करती है इन प्रमोशन फ्रॉम इंस्पेक्टर टू ITO। ओके, दूसरी चीज़, अब प्रमोशन में कितना टाइम लगता है। लाइक चेन्नई में मैं पोस्टेड हूँ, यहाँ पे बेसिकली जैसे TA टू इंस्पेक्टर, स्टेनो टू इंस्पेक्टर, और इन सब प्रमोशंस में उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ITI टू ITO सीरियसली टाइम लगता है। अभी मेरे को 5.5 years हो गए, एंड कमिंग 3 years ऑल्सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग माई प्रमोशन। अप्रोक्सीमेटली 8 years इट इज़ गोइंग टू टेक फॉर मी टू become an ITO from inspector, and afterwards approximately minimum 10-year time it is going to take for me to become an ACIT, assistant commissioner of income tax, that is an IRS post. okay, उसमें एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसा नहीं है कि हम एलिजिबल नहीं होते हैं, बट देर आर सर्टन थिंग्स गोइंग ऑन, तो उसके बारे में भी हम कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो ये होता है आपका प्रमोशनल एस्पेक्ट। अब आते हैं ट्रांसफ़र पे। क्या होता है, मैंने 2016 बैच से ज्वाइन किया था। ठीक है, अब 2016 में जब मैंने 2016 के बैच से मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। 2018 में जब मैंने ज्वाइन करा था ना, तब ट्रांसफ़र पॉलिसी ये बोलती थी कि अगर आप एक अनमैरिड गर्ल हो तो आपको विद इन अ ईयर ट्रांसफ़र मिलेगा आपके स्पेसिफाइड रीजन में। ठीक है, अगर आपका स्पाउस ग्राउंड बनता है तो भी आपको 1 साल में मिल जाएगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आपको 1 साल में मिल जाएगा, और कोई कंपैशनेट ग्राउंड है जिसके साथ आपका प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्री करता है तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी सारे केसेस में आपको 3 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद इंटरचार्ज ट्रांसफ़र मिलेगा जहाँ पे भी आप चाहते हो। कंडीशन ये थी कि आपने जितनी सर्विस इस रीजन में पूरी करी होगी ट्रांसफ़र से पहले तक, वो सब ज़ीरो हो जाएगी और आप वहाँ जाके फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या हुआ, ठीक है, हम खुश थे कि 1 साल बाद, क्योंकि अनमेरिड बेस्ड ग्राउंड पे मुझे 1 साल में प्रमोशन वो ट्रांसफ़र मिल जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। तो मैंने 2016 CGL का एग्ज़ाम नहीं दिया। मुझे था कि मेरे को मेरी चॉइस की जो पोस्ट है वो मिल गई है, ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं है, बट ठीक है 1 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमने तैयारी नहीं करी।
तो क्या हुआ 2019 में हमने हमारी 2019 नवंबर में हमने हमारी आईसीटी की एप्लीकेशन लगा दी थी इंटरचार्ज ट्रांसफ़र के लिए, वो कि यहाँ से फॉरवर्ड भी हो गई। फरवरी 2020 में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला और इन्होंने बोला कि आज से आईसीटी की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होएगी, रादर आपको सिर्फ 3 साल के लिए लोन मिलेगा, जो कि 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई तरह का ट्रांसफ़र इस डिपार्टमेंट में नहीं होएगा। ओके, उसकी फ़ाइट आज तक भी चल रही है। आज तक भी हमारे पास कोई ट्रांसफ़र्स नहीं है, लोन बेसिस ट्रांसफ़र है। लोन बेसिस पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए हुए हैं वहाँ पे, जिनको 3 साल की सर्विस करने के बाद 2 साल का एक्सटेंशन रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ग्रांट हो जाता है तो वो 2 साल और रह सकते हैं, वरना उनको 3 साल के बाद वापसी चेन्नई आना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र का एग्जैक्ट सिनेरियो ये है। और मैं ये बोल दूँ कि ये ट्रांसफ़र खुल जाएंगे तो यस, होप ज़रूर है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हाँ भाई 2 साल बाद या 3 साल बाद खुल जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड वाइल प्रेफरिंग फॉर द पोस्ट दैट इफ़ यू आर समवन हु इज़ likely to stay with their parents, with their family, or with their spouses who are working in the government jobs in the state government, then you have to be careful कि आप कौन सी पोस्ट भर रहे हो। जैसे एक मेरी फ्रेंड ने क्या किया, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसको ईजिली एक्साइज इंस्पेक्टर मिल सकता था, लेकिन उसको घर पे जाना ज़रूरी था बिकॉज हर स्पाउस वॉज वर्किंग देयर ओनली। तो उनका क्लियर था कि उनको इतने मार्क्स के बावजूद उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भरी। तो इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद उनको राजस्थान अलॉट हुआ, ठीक है। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने इंस्पेक्टर की पोस्ट को। अगेन राजस्थान में प्रमोशंस बहुत स्लो हैं, तो अभी तक वो सिर्फ सीनियर टीए बनी है। इंस्पेक्टर का प्रमोशन उनका कब आएगा, वी रियली डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो इस तरह का सेक्रीफाइस आपको ना करना पड़े, उसके लिए आप पहले से ही अपना माइंडसेट बना के रखिए कि या तो आपको जो भी पोस्टिंग जहाँ पे भी मिल जाएगी आप वहाँ रह लेंगे, या तो फिर आपको ये होना चाहिए कि आप किसी और डिपार्टमेंट को चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ ट्रांसफ़र की वजह से इस डिपार्टमेंट में आना सही है कि नहीं है, देखिए स्टार्टिंग में होता है, लेकिन अभी मैं चेन्नई पोस्टेड हूँ तो मुझे पर्सनली इस सिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ठीक है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सेफ़ है, मेट्रो सिटी है बट भीड़ कम है, सब चीज़ें हैं। उसके अलावा भी आप विद इन तमिलनाडु इधर से उधर जा सकते हो। लेकिन जो एक ही प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जब मेरा अगर इफ़ आई थिंक लाइक टुमारो आई वांट टू विजिट माय होम टू माय पेरेंट्स, so that's not possible because you have to plan a little bit in advance because it is going to cost you huge, right, when you are traveling from flights or something. So that is the only concern that you have to address. अगर आपको ओके होता है कि आपको जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पे आप इजीली जॉब कर लेंगे, तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आप सोच के देखिए, हम देश के उन 2% लोगों के साथ ही डील करते हैं जो कि यहाँ की क्रीमी लेयर में आते हैं। हम एलीट क्लास के साथ डील करते हैं जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं, जो कि टैक्स अबाइडर्स होते हैं। हम सर्चेस भी करते हैं तो उन्हीं लोगों के घर करते हैं या उन्हीं लोगों की कंपनीज़ में करते हैं जो कि बहुत ह्यूज होती हैं, ठीक है। तो रेस्पेक्ट वाइज इस डिपार्टमेंट में आपकी बहुत रेस्पेक्ट है, डिपार्टमेंट के अंदर भी है। अगर आप काम अच्छे से जानते हो, आप अपना काम ठीक से करते हो, डिपार्टमेंट के बाहर तो बहुत है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ट्रांसफ़र वाला एक कौन है जो इस पोस्ट में अभी ऐड हो गया है रिसेंटली। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आपको इंस्पेक्टर के साथ साथ अपना रीज़न मिल जाएगा। अगर वो नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि जहाँ पे भी आपको मिलेगा आप ये जॉब करने के लिए रेडी हो। उसके अलावा इसके सारे प्रोज हैं, अच्छी पे स्केल है, अच्छी रेपुटेशन है, आप एक अच्छे लोगों के साथ डील करते हो। इसमें पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो सब डिपार्टमेंट से सबसे कम होती है, ठीक है। उसके अलावा आपका फैमिली टाइम है ना, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरीली जैसे ईडी में है, ईडी में हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर है, ठीक है। आपके पास फैमिली टाइम है ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान लो मैंने इंस्पेक्टर ऑप्ट कर लिया, अब मुझे ईडी में काम करना है, ठीक है, तो आई कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर डेपुटेशन। डेपुटेशन ईडी में हमेशा ओपन होती है, आप कभी भी वो एप्लीकेशन डाल सकते हो। जब भी आपका नंबर आएगा आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन हो जाएगी। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ईडी में डेपुटेशन लगाया था और वो विद इन 2 ईयर्स ही वो वापसी आ गए, 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। वहाँ पे आपको सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिल रहे हैं लेटली, ठीक है।
तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कंसर्न्स हैं जो बाकी सारी पोस्ट के साथ भी अटैच्ड हैं, वो सब भी हम धीरे धीरे वन बाय वन एक एक पोस्ट के बारे में जब बात करेंगे, हम इलेबोरेटली मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी जितनी नॉलेज मुझे है उन चीज़ों की। तो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डिसाइड कि जो कॉन्स हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, जो प्रोज हैं वो आपके लिस्ट में कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। बट इन माई ओपिनियन इनकम टैक्स इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट आउट देयर जो कि आपको चूज़ करना चाहिए। बट अगेन, अगर आपको जैसे आपका श्योर है कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, तो आपको मिनिस्ट्रीज़ के लिए जाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो आपको परमानेंसी देती है कि आप दिल्ली में ही रहोगे ऑल द वे। उनके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में वन बाय वन। सो इस वीडियो में यही था। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, पे से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड टू दिस पोस्ट और फॉर दैट मैटर एनी अदर पोस्ट, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको वहीं कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब दूंगी, या तो मैं उसकी नई वीडियो बना के आपको जवाब दूंगी। बट आप अपना डिसीज़न बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके लीजिएगा। आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड वर्क मांगता है। बहुत मेहनत करने के बाद हम सिलेक्शन लेते हैं, हम एक जगह जाके पहुंचते हैं। अगर आप वहाँ पे जाके अपनी लाइफ से खुश नहीं है किसी तरीके से, किसी वजह से, ठीक है, डिपार्टमेंट में आने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जब आपको पता लगता है कि आप एक जॉब में आ गए हो, अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या कहती हैं कि आपकी फैमिली है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, या फर्दर फैमिली जो आप अपनी बनाने वाले हो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिसाइड करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप प्लीज़ ध्यान से सोचिए, समझिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड within a day or so in the comment section itself. If there are too many queries, I'm going to make a video and I'll let you know. Hope it helps, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.